کہ میں اپنے کیمرہ مین کوشش کرتا ہوں جی دکھائیں ذرا اندر سے، چونکہ ابھی تک بھی سی ٹی ڈی کے لوگ دوسرے لوگ یہاں پر جو ہیں وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ یہاں پر کافی زیادہ لوگ موجود ہیں. موٹر سائیکل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جی ہم آپ کو. یہ بالکل سامنے کھڑی ہے وہ موٹر سائیکل جس پر دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا، اور نصب کرنے کے بعد اس دھماکہ خیز مواد کو وہ اڑا دیا گیا. جہاں پر چونکہ نارکلی چوک ہے اور یہاں پر پولیس کے لوگ ابھی تک موجود ہیں. ڈی ایس جی آپریشن لاہور یہاں پر موجود تھے اور وہ جا چکے ہیں. اسی طرح ڈی ایس جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان صاحب سے ہم نے کوشش کی کہ ان سے کچھ بہتر معلوم ہو سکے، لیکن وہ میڈیا سے بات کرے بغیر ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے. کیونکہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ بالکل یہ سلنڈر دھماکہ نہیں تھا، یہ بالکل یہاں پر دھماکہ خیز مواد کو نصب کیا گیا تھا اس موٹر سائیکل پر. اور چونکہ یہاں پر سیف سٹی کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح چونکہ یہ نارکلی بازار ہے، ہر دکان پر یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، جن کو یہاں پر موجود لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ویڈیوز کو نکلوایا جائے. اور تمام علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے رکھا ہے. چونکہ دھماکے کی جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور اندر جو ہے وہ پولیس کے لوگ، سی ٹی ڈی کے لوگ، بام ڈسپوزل کے لوگ اندر موجود ہیں جو ابھی تک بھی شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. اور بار بار وہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے لفافوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے، اور بڑی بریک بینی کے ساتھ جو ہے وقوع کی جگہ کی چھان بین ہو رہی ہے. اور جلد جو ہے ان کا یہ کہنا ہے، یہ تو روایتی دعویٰ ہے پولیس کا، یہ روایتی دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ جلد پتہ چل جائے گا. لیکن چونکہ آج پنجاب کی طرف سے نوٹس لیا گیا اور فوری طور پر پورے جو لاہور کی پولیسی افسران ہیں، نہ صرف پولیس بلکہ پولیس افسران بھی یہاں پر موجود ہیں، اور تمام ایجنسیز کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر نہ صرف پہنچے بلکہ یہاں سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اور ابھی عمران کشور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کوشش کر رہے ہیں، کچھ ویڈیو جو ہیں وہ پولیس کو مل گئی ہیں. بالکل ملک مشتاق، اس وقت آپ جائے وقوع میں موجود ہیں، ناظرین کو بتائیے گا اس وقت جائے وقوع کی صورتحال کیا ہے، ارد گرد کون کون سی عمارتیں ہیں اور کتنا رش موجود تھا، اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بھی بتائے گا کیا ابھی تک ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور جو زخمی لوگ تھے وہ یہاں سے کافی دیر پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے ہی تمام زخمیوں کو یہاں سے نکال لیا گیا تھا. اور چونکہ ادھر کو آنے والے راستے جو ہیں وہ بھاٹی چوک داتا دربار کی طرف سے گاڑیاں لگا کر بند کیا گیا تھا، اور ادھر کافی زیادہ ٹریفک کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لیکن اس کے باوجود چونکہ اسٹیشن کی طرف سے آنے والے، شاہ عالم مارکیٹ کی طرف سے آنے والی ٹریفک جو ہے ان کو ٹریفک پولیس کے لوگ جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور رش اگر بات کی جائے یہاں پر رش کی، تو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ موجود ہیں، عینی شاہدین یہاں پر موجود ہیں، اور کوشش کیا جائے رش کو ہٹایا جائے. اور پولیس کے لوگ جو ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ رش جو ہے یہاں سے کم ہو اور کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے. یہ دیکھیں لوگوں کو تجسس ہے، دیکھ کے لوگ ٹینٹ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دھماکہ کس جگہ پر ہوا. یہ دیکھیں، اور لیکن اس میں لوگوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. اندر پولیس کا اہلکار موجود ہے جو بار بار لوگوں کو جو ٹینٹ لگائے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، کرائم سین کی جو سٹیکر لگائے گئے ہیں، جو پٹیاں لگائی گئی ہیں، ان کے اندر آنے کی اجازت کسی کو نہیں دے رہے. لیکن پھر بھی کافی زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم دوبارہ سے عینی شاہدین سے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی عینی شاہدین سے بات کرنے کی کہ یہاں پر، کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پر پولیس نے مکمل طور پر لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا تھا، لیکن ایک دم سے اب کیونکہ ٹریفک کو چلایا گیا ہے، پولیس افسران جو ہے وہ یہاں سے گئے ہیں، تو وہ ٹریفک ہٹانے کی وجہ سے اب دوبارہ سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں میرے پیچھے کہ کافی زیادہ لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی، کافی زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. چونکہ یہاں کے میڈیا کے نمائندے بھی یہاں پر موجود ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں کی بڑی تعداد بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے. ہم آپ کو مین بازار کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، اور کافی زیادہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ لوگ ٹریفک کو گزارا جا رہا ہے، لیکن ٹریفک کے لوگ جو یہاں سے گزر رہے ہیں ان کو بھی تجسس ہے. چونکہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ لاہور انارکلی میں بم دھماکہ ہوا. بم دھماکے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر کافی رک رہے ہیں. جو ٹریفک ہے یہاں پر رک کے جا رہی ہے، لیکن ٹریفک کے اہلکار کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹریفک کو جو ہے وہ
जल्दी जल्दी से गुजारा जा सके। चूंकि दूसरी तरफ मैंने जैसे कि आपको बताया कि काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है, मेडिसिन मार्केट है, जो तकरीबन पूरे पंजाब को यहीं से जो है वो मेडिसिन सप्लाई की जाती है। होलसेल की दुकानें हैं, होलसेल की दुकानों पर भी काफी ज्यादा रश है, लेकिन आज चूंकि तमाम रास्ते जो है इधर आने वाले बंद किए गए हैं इस हादसे की वजह से, तो इस हवाले से जो है वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोई शख्स भी इधर ना खड़ा हो। आप देख रहे हैं कि पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो बाहर की तरफ भी अब पुलिस का एक दस्ता लगाया गया है ताकि लोगों को जो है वो जहां से हटाया जा सके। और ये देखिए बिल्कुल ये बैंक था और बैंक के नीचे वो दुकान थी, दुकान के बाहर वो मोटरसाइकिल खड़ी थी जिस मोटरसाइकिल पर वो धमाका खेज मवाद जो है वो फिट किया गया था, बिल्कुल नस्ब किया गया था। और चूंकि यहाँ पर सीटीडी के लोग, बम डिस्पोजल के लोग, पुलिस की नफरी और दूसरे हसास अदारों के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है शवाहिद इकट्ठे किए जाए। एक बार फिर आपको बताता चलूं कि ये लाहौर का एक अहम चौक है, अहम इलाका है। लाहौर अनारकली बाजार का ये चौक है, गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर काफी ज्यादा दुकानें हैं, ना सिर्फ दुकानें बल्कि ये इस चौक में रेडी बानों ने अपनी रेडियां लगा रखी हैं। ये देखें, ये जो काउंटर है, काउंटर के बाहर जो है ये जहां पर बॉन्ड वगैरह का कारोबार किया जाता है, इनामी प्राइस बॉन्ड का कारोबार किया जाता है। ये देखें कि 8 mm का शीशा चकनाचूर हो चुका है और धमाके की जगह से ये काफी दूर भी है। देखिए काफी छोटे छोटे पीस हो चुके हैं। तो इस काउंटर की वजह से भी उन्होंने बताया है कि जो धमाके की शिद्दत थी वो दूसरी तरफ नहीं बढ़ सकी, लेकिन काउंटर चूंकि बिल्कुल तबाह हालत का शिकार हो चुका है। ये देखें तबाह है। और यहीं पर आप देखें जो रेडी बानों ने अपने कपड़े बेचने के लिए गर्म कपड़े, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये रेडी बान है जिन्होंने गर्म कपड़े बेचने के लिए यहाँ पर रेडियां लगाई थी। वो बिल्कुल ये देखें, एक कपड़ों के हालात ये हैं कि मुकम्मल तौर पर ये फट चुके हैं। अच्छा मलिक मुश्ताक, आपको 7 न्यूज़ के नाजरीन आपको देख रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक दफा फिर से आप नाजरीन को बताएं कि एनी शाहिदीन का क्या कहना था और मजीद लोगों से बात करके लोगों तक ये पहुंचाएं कि क्या हुआ उस वक्त जब धमाका हुआ और क्या मनाजिर थे। जी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर एनी शाहिदीन से कुछ बात हो सके, तो मैं दोबारा से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर रश काफी ज्यादा है और पुलिस के लोग जो है वो किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एनी शाहिदीन से बात करते हैं। जी आप यहीं पर मौजूद थे, क्या हुआ था सर बताइए। बस क्या होना था भाईजान, एकदम धमाका हुआ, उसके बाद कुछ नजर नहीं आया, लोग गिरे हैं, उसके बाद हम लोग भागे। मेरे से यार बात नहीं होती, बात आपकी मेहरबानी नहीं होती, नहीं देखा जाता सीन बॉस, नहीं देखा जाता। जो बेचारे मुसाफिर मरे हैं वो अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, बेचारे बहुत लोग डैमेज हुए हैं। नहीं होती बात कि जी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने एनी शाहिदीन से बात करने की कोशिश की लेकिन वो काफी सेंटी हो गए, चूंकि इन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर, वो खौफनाक मंजर, वो धमाके की जगह पर ये बिल्कुल साथ मौजूद थे, तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और इनका ये कहना है कि जब धुएं के बादल हटे, आप यहाँ पर मौजूद थे जी, बताएं। इधर ही मौजूद है, इधर ही मौजूद है। इधर बाइक खड़ी थी साइड पे ना, उसमें एकदम मतलब उड़ी है हवा में, आग वगैरह काफी निकली है, बम डिवाइस लगी हुई थी उसमें ना बाइक के अंदर ही, तो काफी लोग होने लगे एकदम से। बाकी अल्लाह पाक अपना रहम करे, करम करे, जो आगे बेचारे बीच में आए हैं कोई, उन पर अल्लाह पाक अपना करम करे। जी आप बताएं क्या हुआ। जी इधर 10-15 मिनट पहले मैं इधर खड़ा हुआ था, ठीक है, उर्दू बाजार में, यकदम इधर से आवाज आई है, लोग इधर शोर मचाना लग गए हैं। एक तरफ से इधर मुसाफिर थे, ठीक है, परदेसी हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं इधर, लेकिन जोर से आवाज आई तो हम इधर आए तो पता लगा जी इधर बम धमाके की आवाज है। जी मजीद भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, चूंकि यहाँ पर जो मनाजिर है वो इंतहाई खौफनाक हैं और कुछ लोग यहाँ पर सेंटी हैं। वो अभी एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई, उसने रोना शुरू कर दिया। जी आप भी यहाँ पर मौजूद थे? मौजूद नहीं था, मेरी बीवी जो है ना वो शॉपिंग के लिए आई थी, तो घर नहीं अभी तक पहुंची, तो मैं ढूंढने आया तो पता चल सके कि इनसे पूछूं कैसे लिए कि इस तरह कोई औरत तो नहीं देखी। तो मिल गई हैं आप? नहीं अभी नहीं मिली, वो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, 1-2 चीज पूछा, वो कह रहे नहीं हम नहीं देखा, वो और मजीद पूछना चाहता हूँ। तो घर में बहुत आप हॉस्पिटल गए हैं? नहीं हॉस्पिटल नहीं मैं गया,
मेरी टांग टूटी, मैं खुद जो ना बड़ी मुश्किल से चल रहा हूँ। क्या नाम था आपकी? जरीना सुहेल। वो खरीदारी के लिए यहाँ पर आई? हाँ जी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। तो आप जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मेरी बीवी यहाँ पर खरीदारी के लिए आई थी, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बावजूद वो घर नहीं पहुंची। हम मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, हम बाहर चलते हैं यहाँ से, चूंकि क्राइम सीन के पट्टियां लगाई गई हैं और वहां से निकाला जा रहा है लोगों को। जी आप यहाँ पर मौजूद थे, काफी ज्यादा लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, चूंकि क्राइम सीन की तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। चूंकि मैं अब काफी दूर धमाके से बाहर की तरफ जो है वो निकल आया हूँ। आप देखें यहाँ पर भी लोग अभी तक खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हम पूछते हैं इनसे। आप यहाँ पर मौजूद थे जी, क्या हुआ था? मैं यहाँ पर सर मौजूद नहीं था, बड़ा मुझे तला मिले कि यहाँ पे पाना वाला के सामने ना ये मोटरसाइकिल पे इन्होंने बम को किया था, तो उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। मलिक मुश्ताक जाय वकुआ पे मौजूद थे, उनकी यानी शाहिदीन से बात हुई और एक यानी शाहिदीन धमाके की सूरत-ए-हाल के हवाले से बताते हुए आप दीदा हो गए। एक डेथ भी हो गया सुना सामने से, इतना पता चला, फिर हमने सारा कुछ यहाँ से समेट के साइड पे हो गया सर। ये आपने तो क्या देखा? नहीं सर, मैं अभी आगे खड़ा ही हुआ हूँ, पता लगा था। मलिक मुश्ताक इस वक्त जाय वकुआ पे मौजूद है, उनकी यानी शाहिदीन से भी बात हो रही थी। एक यानी शाहिदीन धमाके की सूरत हाल के हवाले से बताते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों की हालत काफी तशवीशनाक थी, चंद ही वक्त में हर तरफ धुआं ही धुआं था, मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए और मुतअद्दिद दुकानों में आग लग गई। मोटरसाइकिलों की हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। नाजरीन, अनारकली पान मार्केट में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि DIG ऑपरेशन का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक प्लांटेड डिवाइस लगाई गई, जबकि DC लाहौर ने कहा है कि वाकई में कौन मुलविस है जल्दी पता लगा लिया जाएगा। आपको ये लाइव मुनाजिर दिखा रहे हैं जाय वकुआ के। अनारकली की पान मार्केट में धमाका हुआ है। 7 न्यूज की टीम इस वक्त जाय वकुआ पे मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी जाय वकुआ पे मौजूद है, रेस्क्यू टीम में इस वक्त जाय वकुआ पे मौजूद है। म्यो अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और नाज़रीन, आपको बताते चले, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 5 से 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। नाज़रीन, जाय वकुआ पे इस वक्त 7 न्यूज की टीम मौजूद है। ये जाय वकुआ की आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं और यानी शाहिदीन धमाके की सूरत हाल के हवाले से बताते हुए आप दीदा हो गए और उन्होंने कहा है कि चंद ही सेकंड में बाजार की हालत तब्दील हो गई, मुतअद्दिद दुकानों में आग लग गई, मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए और जख्मियों की हालत काफी तशवीशनाक थी। और धमाके की तकरीबन आधे घंटे के बाद इंतजामिया यहाँ मौजूद थी और भारी नफरी पुलिस की यहाँ पे मौजूद थी, रेस्क्यू टीम यहाँ पे मौजूद थी। MS म्यो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि तिबी इमदाद दी जा रही है, जख्मियों की हालत जो है वो काफी बेहतर है, लेकिन 4 जो जख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है। अनारकली की पान मार्केट में धमाका हुआ, बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 28 अफराद शदीद जख्मी है, 4 की हालत तशवीशनाक है, जबकि धमाके बाद कई मोटरसाइकिलों में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पे मौजूद है। फॉरेंसिक टीमें भी इस वक्त जाय वकुआ पे मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जा रही है और इस वक्त 7 न्यूज की टीम जाय वकुआ पे मौजूद है। धमाके से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को भी आग लग गई। DIG ऑपरेशन का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक प्लांटेड डिवाइस लगाई गई, जबकि DC लाहौर ने कहा है कि वाकई में कौन मुलविस है बहुत जल्द पता लगा लिया जाएगा। भारी नफरी इस वक्त पुलिस की मौजूद है, काफी ज्यादा शहरियों की तादाद भी जाय वकुआ पे मौजूद है जिन्हें पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि म्यो अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टरों की बड़ी तादाद इस वक्त जख्मियों को तिबी इमदाद दे रही है, जबकि सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से जब 7 न्यूज की बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5 से 7 जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लोहारी गेट धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक होने वालों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है, जबकि जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि लोहारी गेट में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 25 अफराद जख्मी हैं जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि दुकानों के करीब धमाके के बाद आग भड़क उठी और धुएं के बादल देखे गए। यानी शाहिदीन की जाने से बताना था कि धमाके की जगह पर घड़ा भी पड़ चुका है, जबकि वजीर आजम इमरान खान की
की जानिब से भी लाहौर धमाके का नोटिस ले लिया गया है, हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि धमाके के बाद कई मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा, इमारतों के शीशे टूट गए और जहां पर ये धमाका हुआ है वहां पर गड्ढा पड़ चुका है। शेख रशीद की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी का खतरा है। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान ने धमाके का नोटिस लेते हुए हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा है कि तमाम तक जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए। आपको बताते चलें कि धमाके की जगह पर गड्ढा पड़ चुका है और टूट गए, इमारतों को आग लग गई और इस धमाके के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए और जान बहक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र 9 साल है और जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की बड़ी नफरीद मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, रेंजर्स की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद है, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर धमाका नहीं था बल्कि प्लांटेड डिवाइस लगाई गई थी। आपको ये भी बताते चलें कि 7 न्यूज की टीम मौके पर मौजूद थी, तमाम तर सूरत हाल से हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रही थी। ये भी आपको बताएं कि DC लाहौर का कहना है कि धमाका 1:45 मिनट पर हुआ था। मजीद तफसीलात एक बार फिर से मलिक मुश्ताक से जान लेते हैं जो जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, DC लाहौर का कहना है कि धमाका 1:45 मिनट पर हुआ। क्या कहना है लोगों का कि कब तक रेस्क्यू टीम्स पहुंची, पुलिस कब तक पहुंची, कितना इस ड्यूरेशन में गैप था? जी बिल्कुल, DC लाहौर की तरफ से जो बताया गया है कि धमाका 1:45 पर हुआ, लेकिन धमाका एकदम से हुआ। चूंकि ये धमाका था, इस हवाले से यहाँ पर लोगों का जो एनी शाहिदीन का ये कहना है कि एकदम से जब धमाका हुआ उसके बाद हर तरफ धुआं था और हर धुआं जब थोड़ी ही देर के बाद हटा तो इनका ये कहना है कि इंतजामिया या रेस्क्यू के लोग जो हैं वो तकरीबन मलिक मुश्ताक इस वक्त जाए वक़्वा पे मौजूद है और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौजूद हैं। एक बार दोबारा से हम आपको बराह रास्त जाए वक़्वा पे ले चलते हैं जहां मलिक मुश्ताक मौजूद है। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनी शाहिदीन का ये कहना है कि यहाँ पर जब धमाका हुआ तो धुएं के बादल थे, हर तरफ धुआं था, चीखो पुकार का समा था। तो उसके बाद तकरीबन 30 मिनट के बाद रेस्क्यू की गाड़ियां और पुलिस के लोग या इंतजामिया के लोग यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले ही चूंकि चौकानार कली में जो लोग थे दूर दूर तक, वो फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर भागे और लोगों को उठाकर जो है वो रक्षों में डाला गया। चूंकि यहाँ पर रक्षी अक्सर खड़े होते हैं, लेकिन मलिक मुश्ताक इस वक्त जाए वक़्वा पे मौजूद है, उनसे राब्ता करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। नाज़रीन, लाहौर नारकली पानवाटी में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जान बहक होने वालों में एक बच्चा भी मौजूद है और बच्चे की उम्र 9 साल बताई जा रही है। और नाज़रीन, आपको बताते चले 28 जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि धमाके के बाद कई मोटरसाइकिलों में आग लग गई, मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जाए वक़्वा पे मौजूद है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है, फॉरेंसिक टीमें भी इस वक्त जाए वक़्वा पे मौजूद है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, सेफ सिटी कैमरास की मदद ली जा रही है। जबकि बम डिस्पोजल टीमें भी इस वक्त जाए वक़्वा पे मौजूद है और इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इस वक्त काफी तादाद में शहरी वहां पे जाए वक़्वा पे मौजूद है, जिन्हें पीछे हटाने की भी कोशिश की जा रही है। नाजरीन, आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से 7 न्यूज की बात हुई तो उन्होंने कहा 5 से 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जख्मियों को तिबी इमदाद भी दी जा रही है। MS म्यो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो बच्चा जाँ बहक हुआ है उसकी उम्र 12 साल है। इस वक्त 7 न्यूज की टीम जाए वक़्वा पे मौजूद है। आपको बराह रास्त दोबारा से लिए चलते हैं। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? 7 न्यूज़ की टीम जाए वक़्वा पर मौजूद है, नुमाइंदा 7 न्यूज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। हमें लम्हा बलम्हा तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 खातून भी इस तमाम तर सूरत हाल में शदीद जख्मी हुई हैं और आपको बता रहे हैं कि मलिक मुश्ताक 7 न्यूज़ की टीम, नुमाइंदा 7 न्यूज़ इस वक्त जाए
जायम वक़ूआ पर मौजूद हैं और अपने नाजरीन को तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि 3 खवातीन इस धमाके में शदीद जख्मी हुई हैं, 2 अफराद इसमें जान की बाजी हार गए हैं, जिसमें एक 9 साल का बच्चा भी बताया गया है। आपको बताते चलें कि 28 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, 4 की हालत तशवीशनाक है। धमाके के बाद कई मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचा है और वाक़े में कौन मुलव्विस है जल्द पता लगा लिया जाएगा। DC लाहौर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वाक़े में मुलव्विस अफसरान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही साथ वजीर आजम इमरान खान ने जितने भी जख्मी हैं उन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए, ये अहकामात भी जारी कर दिए हैं। धमाके में जाँ बहक बच्चा इब्सार कराची का रिहायशी था और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आपको बताते चलें कि बच्चा जो इसमें जाँ बहक हुआ है वो कराची का रिहायशी बताया जा रहा है और इब्सार के वालिदैन भी धमाके में जख्मी हुए हैं। 9 साल का जो बच्चा इस धमाके में जाँ बहक हुआ है, उसका इब्तदाई उसकी तहकीकात के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि उसका नाम इब्सार है और बच्चा कराची से ताल्लुक़ रखता है। आपको अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आगाह करते चलें, अनारकली में ये धमाका हुआ है जहां पर लोहारी गेट के करीब ये धमाका हुआ है और धमाके की जगह पर गड्ढा पड़ चुका है। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा, 2 अफराद इसमें जान की बाजी हार गए हैं। और इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए नुमाइंदा 7 न्यूज़ मियाँ ज़ुहैब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ ज़ुहैब, बताइएगा क्या अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जाँ बहक बच्चे की जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है, इब्सार कराची का रिहायशी था, उसके वालिदैन भी जख्मी हैं। जो दूसरा शख्स जाँ बहक हुआ है उसकी तफसीलात सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जिसके नतीजे में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि इस वक्त 29 अफराद जो है वो जेर इलाज है जिनको अमूरी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अगर मैं दूसरी जानब बात करूं तो अफ्तार जो 9 साल बच्चा था जो इस वाक़े में हलाक हुआ, तो उनके अहले खाना भी इस इलाके में जो है वो बुरी तरह मुतासर हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन बच्चा जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके। इसके अलावा जो है वो एक और शख्स जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुका है इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर। जख्मियों को न्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा जो है वो इस वक्त 6 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जाँ बहक शख्स जो दूसरा शख्स था उसकी भी शनाख्त हो चुकी है, 31 साल रमजान के नाम से उनकी शनाख्त हो चुकी है और उनके भी अहले खाना वहां पर पहुंच चुके हैं। न्यू अस्पताल में तमाम तर अहले खाना की जानब से आमद का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, अहले खाना की जानब से आमद का सिलसिला जारी है। मियाँ ज़ुहैब, ये बताइएगा कि आप अस्पताल में मौजूद हैं, बच्चा जाँ बहक हो चुका है, अफसोसनाक खबर है ये। बच्चे के वालिदैन भी बताए जा रहे हैं कि वो जख्मी, आपने बताया कि वो भी जख्मी हुए हैं इस धमाके में, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? क्या वो तशवीशनाक जो अफराद हैं उनमें शामिल है या फिर उनकी हालत खतरे से बाहर है? जी बिल्कुल, बच्चे के जो वालिद हैं उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है, उनको लाहौर के न्यू अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। कि जो है वो अमवात की खुशखबर सुनकर जो है वो उन पर जो है वो उनको जिम्मे में है, लेकिन अभी उनकी जो है वो हालत खतरे से बाहर है, उनको मैं अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस वक्त अगर मैं मजमूई तौर पर सूरत हाल पर बात करूं तो लाहौर के अस्पताल में इस वक्त 6 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जबकि 29 अफराद को लाहौर के न्यू अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तमाम तरह इमदादी कार्रवाइयाँ जो वहाँ पर इस वक्त जारी हैं और अगर मैं बताता चलूँ तो इस धमाके में जो मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जो मामूली नोयत के जख्मी थे उनको जो है वो एक तरह से तिब्बी इमदाद देने के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई है। मियां ज़ुहैब, बताइएगा, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से 7 न्यूज़ की ख़ुसूसी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि अभी जख्मियों को मजीद अस्पताल लाया जा रहा है। इस वक्त टोटल कितने जख्मी अस्पताल में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जायम वक़ूआ से लाहौर का मियां अस्पताल जो है वो सबसे करीबी जो अस्पताल है, वहाँ पर इस वक्त 29 अफराद को जो जख्मी हालत में जिनको 1122 रेस्क्यू के जरिए रेस्क्यू किया गया और उनको लाहौर के मियां अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जिनकी जो है वो ट्रीटमेंट जारी है। 6 अफराद जो है वो इसमें तशवीशनाक हालत में है जिनकी की जा रही है। तमाम डॉक्टर जो है वो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से
डॉक्टर्स को जो है वो पर मौजूद रहना और पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस को भी जो है वो महकमा सेहत की जानिब से तलकीन की गई है। सख्ती से जो है वो नोटिस जारी किया गया है कि आप ड्यूटियों पर रहें और तमाम तर छुट्टियां मुअत्तल कर दी हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वार्ड जो है वो खाली करवा लिए गए हैं और इस वक्त जो है वो लाहौर के निजी अस्पताल में 29 अफराद को दाखिल किया गया, जिसमें से 6 अफराद की हालत इस वक्त जो है तशवीशनाक। मियां ज़हीर बताइएगा, जख्मियों में बताया जा रहा है कि 3 खवातीन भी मौजूद हैं जिन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। मियां ज़हीर बताइएगा उन खवातीन की हालत इस वक्त कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल, जख्मियों में 3 खवातीन भी हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों में जो है वो खवातीन की हालत जो है वो इस वक्त खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है और मामूली। ठीक है, मियां ज़हीर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी बात करने के लिए हमने राब्ता किया है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज़ के लिए खुसूसी वक्त निकाला। शेख रशीद साहब, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल के हवाले से, इस धमाके के हवाले से? देखिए, पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से सवार मंगल वाले दिन से ऐसी अफवाहें हैं कि 3-4 शहरों में से किसी जगह टारगेट किया जा सकता है। हमने अपने तौर पर FC भी भेजी है और मुख्तलिफ एजेंसीज की स्पोर्ट्स की इतलात पर हम अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं। हमारे जो सिविल आर्म फोर्सेस के इदारे, इसके बावजूद एक अलमनाक हादसा हुआ है और जिसमें 3 लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हैं और पाकिस्तान में एक दोबारा फजा बनाई जा रही है दहशतगर्दी की। नहीं, ये इतलात जो होती है किसी इलाके के हवाले से तो नहीं होती। दहशतगर्द तो आपको पता है, अगर ये करें तो फिर क्या है, ये तो नहीं होता कि भी कहाँ करेंगे, लेकिन ये बातें थी कि यहाँ मूवमेंट है, यहाँ इस किस्म की इन शहरों में सूरत हाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपना खुसूसी वक्त 7 न्यूज़ को दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि इतलात मौसूल की जा रही थी, 3 या 4 इलाकों में थ्रेट्स मौजूद था। नाज़रीन, आपको बताते चले इस वक्त 7 न्यूज़ की टीम जाए वकुआ पे मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अनारकली के पान मार्केट में धमाका हुआ है, बच्चे समेत 2 अफराद जा बहक हुए हैं, जबकि बच्चे की शिनाख्त कर ली गई है। बच्चे का ताल्लुक कराची से है। बच्चे के वालिदैन भी इस धमाके में शदीद जख्मी हुए हैं। बच्चे का नाम अबसार बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त टोटल जख्मी जो है उनकी तादाद 28 बताई जा रही है। 4 की हालत तशवीशनाक है। और सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से 7 न्यूज़ की जब खुसूसी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक जख्मियों को अस्पताल लाया जा रहा है। मेयो अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तिबी इमदाद दी जा रही है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि धमाके के बाद कई मोटरसाइकिलें जो हैं उनको आग लग गई। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पे मौजूद है। धमाके से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को भी आग लगी। DIG ऑपरेशन का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक प्लांट की डिवाइस लगाई गई, जबकि DC लाहौर ने कहा कि वाकई में कौन मुलविस है बहुत जल्द पता लगा लिया जाएगा। MS मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों में 3 खवातीन भी मौजूद है। तशवीशनाक हालत में 4 लोग मौजूद हैं जिनकी सर्जरीज भी की जा रही है। आपको बताते चले इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि धमाका टाइम डिवाइस के मुताबिक किया गया। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पे मौजूद है। हिसास इदारे इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद है और इब्तदाई रिपोर्ट भी के मुताबिक बताया जा रहा है कि धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है। लोहारी गेट में धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हैं। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में 3 खातीन भी शामिल हैं, जबकि दुकानों के करीब धमाके के बाद आग भड़क उठी और धुएं के बादल देखे गए। धमाके की जगह पर गड्ढा पड़ गया, इमारतों के शीशे भी टूट गए और धमाके में जाँ बहक बच्चा इब्सार कराची का रिहायशी है और इब्सार के वालिदैन भी इस धमाके में जख्मी हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि DIG ऑपरेशंस ने कहा धमाके में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एनी शाहिदीन ने 7 न्यूज़ से गुफ्तगू की। एनी शाहिदीन का इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नाज़रीन, 7 टीम ने खुसूसी गुफ्तगू की। एनी शाहिदीन के मुताबिक जब धमाका हुआ तो चंद ही सेकंड में सूरत हाल तब्दील होगी। मुतअद्दिद इमारतें के जो शीशे हैं वो टूट गए और उनका मजीद क्या कहना था इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जाए वकुआ पे 7 न्यूज़ की टीम भी मौजूद है और मलिक मुश्ताक इस जाए वकुआ पे मौजूद है। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी बिल्कुल, काफी वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक भी जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और CTD के लोग, पुलिस की बड़ी नफरी, बम डिस्पोजल के लोग और हसास अदारों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
तो बिल्कुल अभी तक भी अंदर जो है वो जाए वकुआ को घेरे में ले रखा है, किसी को अंदर जाने की इजाजत अभी तक भी नहीं दी जा रही। हम कोशिश करते हैं आपको एक दफा दोबारा दिखाने की कोशिश करते हैं हम कि ये अंदर क्या, ये देखें बिल्कुल अंदर तमाम लोग मौजूद हैं जो अभी तक भी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है कि धमाका किस वक्त हुआ। चुके अफसरान का ये कहना है कि धमाका 1:45 पर हुआ और चूंकि 1:45 के धमाके के बाद जो है वो आधे घंटे के बाद इंतजामिया और रेस्क्यू के लोग यहाँ पर पहुंचे। ऐनी शाहिदीन ने ये बताया है कि अपनी मदद के तहत यहाँ पर लोग कोशिश करते रहे कि लोगों को जल्द अज जल्द जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सके और लोगों ने ऐसा किया भी। और यहाँ पर खड़े जो रिक्शे थे उन पर जो है वो जख्मियों को बिठाकर फौरी तौर पर लाहौर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चूंकि अगर बात की जाए धमाके की जगह की तो आप देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर के वाज़ेह तौर पर अभी तक भी इतने वक्त गुजरने के बावजूद भी पुलिस के जो वाला अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और असासदारों के लोग अभी तक भी जो है वो घेरे हुए हैं इस इलाके को। अहम बात यह है कि दूसरी, ठीक है, मलिक मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे इस हवाले से मजीद भी मलिक मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। 7 न्यूज़ को सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो चुकी है और उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है धमाके के फौरन बाद की सूरत हाल क्या थी। लाइव मुनाजिर भी आप इसमें देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अनारकली की पान मार्केट में धमाका हुआ है, बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 28 अफराद शदीद जख्मी है। सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ को हासिल हो गई। लाहौर में धमाका कैसे हुआ और धमाके की कितनी देर के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू टीमें मौका पे पहुंची, तमाम तर सूरत हाल से हम वक्तन फवक्तन आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में धमाका कैसे हुआ सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 7 न्यूज़ की टीम इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी, कानून नाफिज करने वाले इदारे, बम डिस्पोजल टीमें भी इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद है। नाजरीन आपको ताजा तरीन सूरत हाल से कर रहे हैं। अनारकली के पान मार्केट में धमाका हुआ, ये धमाका कैसे हुआ है इस हवाले से हम आपको ही कुछ ही सेकंड में बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। लाहौर में ये धमाका कैसे हुआ सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अनारकली की पान मार्केट में ये धमाका हुआ है, बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 28 अफराद शदीद जख्मी है जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन 7 न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। किस तरह से ये धमाका हुआ, अनारकली की पान मार्केट में जो धमाका हुआ है उसके बाद की सूरत हाल क्या थी, मनाजिर क्या थे, आपको 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। अनारकली के पान मार्केट में ये धमाका हुआ, बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन 7 न्यूज़ की टीम इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फॉरेंसिक टीमें इस वक्त शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है। यह धमाका अनारकली की पान मार्केट में हुआ, बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 28 अफराद शदीद जख्मी है। वजीर दाखिला शेख रशीद से 7 न्यूज़ की गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इत्तलात मौसूल हो रही थी 3 या 4 इलाकों में थ्रेट मौजूद था। आपको बताते चलिए सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक अभी जख्मियों को अस्पताल लाया जा रहा है। जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त का अमल भी जारी है। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त कर ली गई है। बच्चे का नाम अबसार बताया जा रहा है और बच्चे का ताल्लुक कराची से है। इस धमाके में बच्चे के वालिदैन भी शदीद जख्मी हुए हैं। वालिदैन को तिबी इमदाद दी जा रही है लेकिन बच्चा जाँ बहक हो चुका है। नारकली की पान मार्केट में ये धमाका हुआ। ये धमाका कैसे हुआ आप 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे देख सकेंगे। सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अनारकली की पान मार्केट में धमाका हुआ, बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 28 जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके के बाद कई मोटरसाइकिलों में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पे मौजूद है। 7 न्यूज़ की टीम की एनी शाहिदीन से भी बात हुई। एनी शाहिदीन के मुताबिक चंद ही सेकंड में इलाके की सूरत हाल तब्दील हो गई थी और धुआं ही धुआं देखने में आया। मुतअद्दिद इलाके में दुकानों में आग लग गई और मुतअद्दिद इमारतों की जो शीशे हैं वो भी टूट गए।
नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर में धमाका कैसे हुआ आप 7 न्यूज की स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनारकली की पान मार्केट में धमाका हुआ, बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 7 न्यूज की टीम इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद है, ताजा तरीन सूरत हाल से भी आपको बताए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज भी आप देख सकेंगे कुछ ही सेकंड के बाद। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद में अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ये जो सानिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सानिया हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक चीज है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। ये जो एक ब्लास्ट की वजह से इस वक्त हमारे पास जो ये ब्लास्ट अनारकली के अंदर हुआ है, उस ब्लास्ट में हमारे पास जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 है। 28 में से एक मरीज जब आया था तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, आराम से चलो, कोई बात नहीं चलो जी मैडम। एक मरीज ऑलरेडी एक्सपायर्ड आया था, एक मरीज की डेथ यहाँ हो आके हुई है। उसके अलावा इस वक्त हमारे पास 26 वो मरीज हैं जो जख्मी हैं। उन 26 में से 4 पे इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला उन्हें से पर वो क्रिटिकल है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो 4 हमारे पास थिएटर में हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। 3 फीमेल मरीज आई थी, तीनों इस वक्त स्टेबल हैं और उनको भी देखा जा रहा है। क्रिटिकल जिस तरह आपको मैंने बताया है कि 4 मरीज हैं और वो चारों मरीज जो हैं उनका इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारा सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है, हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हर किस्म की दवाई, हर किस्म की सहूलत हमारे सारे मरीजों के लिए यहाँ मौजूद है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत क्विक रिस्पॉन्ड किया। यहाँ प्रोफेसर साहब भी थे जिन्होंने रिसीव किया मरीजों को। और ये गोल्डन आवर बड़ा अहम होता है, अगर पहले घंटे में आप मरीजों का सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर दें तो मरीजों का बचने का बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो शुक्र है खुदा का कि इस वक्त जो 26 लोग हमारे पास हैं उनमें से बाकी सारे स्टेबल हो गए हैं। सिर्फ 4 ऐसे मरीज हैं जो क्रिटिकल हैं और इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो रहा है। जैसे जैसे हालात होंगे उसी तरीके से हम आपके सामने ये बात लेते आएंगे। मैडम ये बताइएगा, चीखो नहीं, सारे बारी बारी जख्मी आए हुए हैं, आपको क्या लगता है उनकी जो जितनी इंजरीज है उसको देखकर क्या लगता है कि कोई छरे यूज हुए हैं, कोई ऐसे कील यूज हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, जो अभी सबसे बड़ी बात है, ब्लास्ट जब होता है, ब्लास्ट की एक अपनी डैमेज होती है। जैसे इट हैज़ एन इम्पैक्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी ब्लास्ट का असर होता है। लेकिन ब्लास्ट के अलावा शैपनल्स है। शैपनल्स जो हैं, इस वक्त 2 ऐसे मरीज हैं जिनके पेट के ऊपर शैपनल्स हैं, जिनका अभी वो हैं स्टेबल, लेकिन वो शैपनल्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब ये आपको रिपोर्ट जो है ये पुलिस वाले और होम वाले देंगे कि जो ये निकला है सारा मवाद, ये आया वो क्या कहते हैं, वहाँ के जो लोकली चीजें पड़ी हुई थी वो फट के या 1 सेकंड या उनके अंदर जो मवाद था उसके अंदर कीले और ये सब कुछ डाला रखा था। ये इसके बारे में आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट पेश करें। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि बॉल बेरिंग जो है उनकी मौजूदगी क्या पाई गई है या नहीं पाई गई? और धमाका केस, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मजीद भी यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं ऐसे केसेस को पहले भी डील करते रहे हैं, जो बर्न्स हैं, किस तरह का बारूदी मवाद आप समझती हैं कि इस धमाके में इस्तेमाल हुआ? कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बर्न है और वो कितने % बर्न है? देखिए, बर्न्ड पेशेंट कोई नहीं है। जो भी इंजरीज हैं मेजॉरिटी ऑर्थोपीडिक की इंजरीज हैं। हेड इंजरीज सारी एक्सक्लूड कर दी गई, न्यूरो सर्जन उनको देख के गए हैं, देयर इजंट एनी हेड इंजरी। जितनी है वो ऑर्थोपीडिक की हैं। 4 मरीज जो इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त सीरियस हैं उनकी भी लिम्स का मसला है। तो चांसेस यही हैं कि इट इज आग की वजह से नहीं, इट इज बेसिकली जो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के साथ जो सबसे सामने इम्पैक्ट में थे उनकी बाजू, टांगे या जो भी जिधर भी इंजरी आई वो आपको डिटेल बता देंगे। जब एक दफा मरीज जो हैं वो थिएटर से बाहर आते हैं तो आपको सारा बता देंगे।
कि उनके आगे मजीद हमने क्या किया, किस तरह उनका ख्याल किया जा रहा है। लेकिन ये सारा जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसको कुछ वक्त लगता है इकट्ठा करने में। वो फोरेंसिक रिपोर्ट हम आपकी इकट्ठा करके और इंशाल्लाह हमारे वीसी साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे जो मेडिसिन है अस्पताल में वो इतनी तादाद में मौजूद है, जो मेडिसिन है इतनी तादाद में है। देखिए मसला ये है, ना मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम है, ना अमले का कोई मसला है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जब ये हुआ है धमाका, विद इन हाफ एन आवर वाइस चांसलर साहब जो खुद भी सर्जन है, वो उनका सारा अमला यहाँ मौजूद रहा। जो अटेंशन देनी चाहिए सब मरीजों को मिली और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बाकी जितने मरीज हैं ये सेहतमंद होके इंशाल्लाह। सेक्रेटरी सेहत और वीसी साहब और जो सीओ थे इन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ये बताइएगा कि जो लोग अब शहीद हुए इस वाकये में उनके जो पोस्टमार्टम का अमल है और उनकी जो डेड बॉडीज है वो लाहिकीन को कब हवाले की जाएंगी? मेरा ख्याल है हर चीज़ जो इस तेजी से नहीं होगी, आराम से सारा कुछ होगा। पुलिस ऊपर है, पुलिस सारी रिपोर्ट्स लिख रही है, नेचुरली मिलके पुलिस डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिनके पोस्टमार्टम्स होंगे वो भी देखे जाएंगे, नेचुरली देखने के लिए कि किस नौयत की इंजरीज थी। और मेरा ख्याल है जो अहम चीज़ बताने की वो आप लोगों को ये है, क्योंकि बाकी जो निटी ग्रिटी है वो साथ साथ आपको बताएंगे। अभी कहा चार क्रिटिकल है, बाकी सारे स्टेबल हैं। तो अगर स्टेबल है वो उनको कितनी माइनर इंजरी है, कब तक उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज? देखें जी, जो आपके इस वक्त बाकी मरीज 4 के अलावा जो बाकी मरीज हैं स्टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसको श्रैपनल लगा हुआ है पेट के ऊपर, वो स्टेबल है। स्टेबल का ये मतलब है कि वो अपने सारे वाइटल्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके श्रैपनल्स निकलने हैं। वो भी थिएटर में जाएगा, उसके भी ऑपरेशन होके और उससे श्रैपनल्स को निकालना पड़ेगा। महकमा दाखिला की जानिब से कोई ऐसे बम ब्लास्ट का पहले बताया गया था हुकूमत की जानिब से, आपने ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे धमाके का हमारा डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके फोरेंसिक एनालिसिस हम कर रहे हैं। जैसे फोरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह आपके सामने। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद मेयो अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा अस्पताल में 28 अफराद को लाया गया, एक अफराद ऑलरेडी एक्सपायर्ड था और एक की हालत काफी तशवीशनाक थी जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाबहक हो गया। और उनकी जानिब से कहा गया जख्मियों में 3 खवातीन भी मौजूद हैं जो स्टेबल हैं, उनको तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उनकी सर्जरीज भी की जा रही है। नाजरीन, आपको ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते जाए और जाए वकुआ पे इस वक्त 7 न्यूज की टीम मौजूद है। उनके यानी शाहिदीन से बात हुई, उनका क्या कहना था आइए आपको भी सुनवाते हैं। क्या हुआ? उसके बाद कुछ नजर नहीं आया, लोग घिरे हैं, उसके बाद हम लोग भागे। मेरे से यार बात नहीं होती, बात आपकी मेहरबानी नहीं देखा जाता सीन बॉस, नहीं देखा जाता। जो बेचारे मुसाफिर मरे हैं वो अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। बेचारे बहुत लोग डैमेज हुए हैं, नहीं होती बात कि भाई धमाका हुआ है, उसके बाद कुछ नजर नहीं आया, लोग घिरे हैं, उसके बाद हम लोग भागे। मेरे से यार बात नहीं होती, बात आपकी मेहरबानी नहीं देखा जाता सीन बॉस, नहीं देखा जाता। जो बेचारे मुसाफिर मरे हैं वो अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। बेचारे बहुत लोग डैमेज हुए हैं, नहीं होती बात कि भाई धमाका हुआ है, उसके बाद कुछ नजर नहीं आया, लोग घिरे हैं, उसके बाद हम लोग भागे। मेरे से यार बात नहीं होती, बात आपकी मेहरबानी नहीं देखा जाता सीन बॉस, नहीं देखा जाता। जो बेचारे मुसाफिर मरे हैं वो अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। बेचारे बहुत लोग डैमेज हुए हैं, नहीं होती बात कि भाई
जाय वकुआ पर मौजूद एनी शाहिद का क्या कहना था वो आपको सुनवाया। 7 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एनी शाहिद आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि धमाका हुआ और आग लग गई, तमाम लोग ज़मीन पर गिर गए और उसके बाद भगदड़ मच गई और वो तमाम तर सूरत हाल बताते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मनाजिर नहीं देखे जाते। अल्लाह से दुआ है कि जो मुसाफिर और जो लोग इस धमाके में जाँ बहक हुए हैं, अल्लाह उनकी आगे का जो सफ़र है वो आसान करे। 7 न्यूज़ ने यानी शाहिदीन से बात की। उन्होंने कहा कि वो रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे कि एकदम से धमाका हुआ, आग लग गई और आग की वजह से मट्टी के धुएं के बादल उड़ना शुरू हो गए, लोग जमीन पे गिर गए और भगदड़ मच गई। और आपको ये भी बताएं कि यानी शाहिदीन से जब 7 न्यूज़ ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि खौफनाक मनाजिर थे और उनको ऐसे लगा जैसे जमीन हिल गई है। धमाके के बाद के मनाजिर 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त आप देख सकते हैं, जबकि 7 न्यूज़ ने धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। धमाके के बराह रास्त मनाजिर भी धमाके के बाद के बराह रास्त मनाजिर 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं और 7 न्यूज़ अपने नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखे हुए है और इस धमाके के हवाले से हर एक चीज से आपको अपडेट कर रहा है। धमाका बारूदी मवाद का था, इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। जबकि आपको बताएं कि इस धमाके में जितने अफराद जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद दी गई है। आधे लोगों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4 अफराद इस वक्त तशवीशनाक हालत में ICU में मौजूद हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं। 3 खवातीन भी जख्मियों में शामिल हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है और वो बच्चा कराची का रिहायशी था। उसके वालिदैन भी इस धमाके में शदीद जख्मी हुए हैं। जी अभी तक वो हॉस्पिटल में मौजूद है, उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको ये भी बताएं कि इस धमाके के बाद इमारतों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा और इब्तदाई रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसके मुताबिक इमारत को नुकसान पहुंचा है, 8 मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा है। धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जबकि धमाका बारूदी मवाद का था और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। जबकि आपको ये भी बताएं कि धमाका 1:40 पर हुआ और रेस्क्यू को 1:44 पर खबर दी गई। और जब एनी शाहिदीन से 7 न्यूज़ ने गुफ्तगू की तो एनी शाहिदीन का बताना है कि रोजमर्रा का काम जारी था कि एकदम से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इमारतों को आग लग गई, धुएं के बादल थे हर तरफ, भगदड़ मच गई, लोग जमीन पर गिर गए। और एनी शाहिदीन बताते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि खौफनाक मनाजिर थे, लोगों को जख्मी हालत में देखा और बहुत से लोगों को बहुत बुरे जख्म भी आए हैं, जबकि 26 अफराद इस वक्त जेरे इलाज हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में 3 खातीन भी शामिल हैं और जाँ बहक होने वालों में एक 9 साल का बच्चा भी है। नाज़रीन, लाहौर अनारकली पान मार्केट में ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। फॉरेंसिक टीम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है। DC लाहौर के इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका 1:45 पे हुआ। म्यो अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टोटल 28 अफराद को अस्पताल लाया गया था। 1 अफराद ऑलरेडी एक्सपायर्ड था और एक की हालत तशवीशनाक थी, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हुआ। और जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है। इस बच्चे का ताल्लुक कराची से है और इस धमाके में इस बच्चे के वालिदैन भी शदीद जख्मी हुए हैं। बच्चे का नाम अबसार बताया जा रहा है। इस वक्त म्यो अस्पताल में जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त का अमल भी जारी है। म्यो अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। 7 न्यूज़ की टीम इस वक्त जाय वकुआ पे मौजूद है। एनी शाहिदीन के मुताबिक जब धमाका हुआ तो चंद ही सेकंड में इलाके की सूरत हाल तब्दील हो गई। आग के बादल देखने में आए और जख्मी जो हैं वो जमीन पे पड़े हुए थे। कुछ जख्मियों की हालत काफी तशवीशनाक थी। धमाके के आधे घंटे के बाद पुलिस की भारी नफरी, रेस्क्यू टीमें जाय वकुआ पे पहुंची।
यानी शाहिदीन के मुताबिक कुछ जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत अस्पताल पहुंचाया गया और 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें एक 9 साल का बच्चा भी जाँ बहक हो चुका है। जख्मियों में 3 खवातीन भी मौजूद है जिन्हें तबी इमदाद दी गई है और जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनकी सर्जरी जारी है। इस वक्त जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन अस्पताल में पहुंच चुके हैं। नाजरीन, 7 न्यूज़ वक्तन फवक्तन आपको अपडेट कर रहा है इस धमाके के हवाले से। ये धमाका कैसे हुआ, आपको इसकी सीसीटीवी फुटेज भी कुछ देर के बाद दिखाई जाएगी। 7 न्यूज़ ने ये फुटेज हासिल कर ली है। अनारकली की पान मार्केट में ये धमाका हुआ है। बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 28 अफराद शदीद जख्मी हैं। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उनको जो जख्मी है उनको में कोई भी अफराद बर्न नहीं हुआ, जलने की कोई निशानात मौजूद नहीं है। ज्यादातर हेड इंजरीज आई है। धमाके के बाद कई मोटरसाइकिलों में आग लगी है। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी रफ्री जाए वकुआ पे मौजूद है। फॉरेंसिक टीमें इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इलाके को घेरे में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस की भारी रफ्री इस वक्त मौजूद है। शहरियों को जाए वकुआ से हटाया जा रहा है। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही है 7 न्यूज़। वक्तन फवक्तन आपको जाए वकुआ से, अस्पताल से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त शिनाख्त जारी है जख्मी होने वाले अफराद की। बहुत से लवाहिकीन जो है जख्मियों के इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं। MS मेयो अस्पताल ने 7 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि तबी इमदाद जारी है। एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है जाँ बहक हो चुका है। एक और सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद बैग में रखा गया है। सबसे पहले 7 न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है। एक्सक्लूसिव मनाज़िर 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे देखिए। आपको बताते चले कि 7 न्यूज़ ने एक और सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद बैग में रखा गया, जिसके बाद ये धमाका हुआ। 7 न्यूज़ ने न्यूज़ सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद बैग में रखा गया था और ये फुटेज 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव मनाजिर है सीसीटीवी फुटेज धमाके की। आपको बता रहे हैं कि धमाके देखा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद बैग में रखा गया था और ये नई सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल की है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद बैग में रखा गया था। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन फुटेज जो है आपको अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लाहौर में धमाका कैसे हुआ, सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मुबैना तौर पे बैग में रखा गया था ये मवाद और ये फुटेज 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर है, जिसमें कुछ ही सेकंड में ये धमाका हुआ और इलाके की सूरत हाल तब्दील हो गई। लाहौर में ये धमाका कैसे हुआ जानिए 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे। सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले 7 न्यूज़ ने हासिल की है। धमाका खेज मवाद मुबैना तौर पे बैग में रखा गया है। ये फुटेज आप 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। लाहौर में धमाका कैसे हुआ ये जानिए 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर, जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जो धमाका खेज मवाद है वो बैग में रखा गया। मजीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे, लेकिन फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़ HD। स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मसरूफ अमल। आप भी उनका साथ दें। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट हरगिज न जलाएं। गाड़ियों की बर वक्त ट्यूनिंग करवाएं। फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाएं और भट्टाजात को सिर्फ जिगजैग मेथोडोलॉजी पर चलाएं। मोटरवे पर सफर के लिए अपनी गाड़ियों पर M टैग लगवाएं। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। मास्क जरूर पहने। आए स्मोक का खात्मा मुमकिन बनाएं। दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज। चॉकलेट का समंदर बास्केटबॉल के अंदर असली जादू मंतर। समंदर के अंदर एक येलो सबमरीन और येलो सबमरीन है इनका घर। WOW सबका जाओ सबका जाओ ये है